My dear friends, aha, एग्जाम्स ओवर. यस, याद है ना हम कौन सी सीरीज चला रहे थे? हम बीबीए के लिए चला रहे थे और द सब्जेक्ट वाज द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओहो, हमारे एग्जाम्स ओवर हो गए, सर से एक बोझ हटा. बट नाउ वी आर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर और इस बार हम सीरीज चला रहे हैं फॉर द कोर्स बीसीए सेकेंड सेमेस्टर. And I have got the subject organization behavior. So we will start the series of organization behavior. The code is BCA 203 from CCS University. In fact, this subject also include in BCom, BBA and BTech. But we are taking here the whole syllabus of BCA. From the syllabus, our first unit is this, as you can see on the screen, and the topics are written here. We will cover these topics lecture wise. So this is our first lecture, but the topics are nature, scope, definition and goals of organization behavior, fundamental concepts of organization behavior, models of organization behavior, emerging aspects of organization behavior including meaning, cultural diversity, managing the perception process. So this is our first lecture. And in first lecture, you can see, yes, you can see, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर एंड हाउ दे आर बिहेविंग. तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसका आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. Now we'll start with the first lecture and we will study two topics here: introduction of organization behavior and nature of organization behavior. So let's start. Yes. Okay. As the subject says, organization behavior, you can see there are two terms, organization and behavior. So I'm going to explain both the terms. Yes, organization plus behavior. What is organization? A group of people who work together, interact with each other, and put their collective efforts to achieve a common goal. Yes. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए जो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ एंड वो अपने एफर्ट्स डालेंगे टू अचीव अ कॉमन गोल. एंड व्हाट इज बिहेवियर? द वे दैट यू एक्ट और बिहेव. आप किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से एक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. राइट. सो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टू. इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स होंगे और वो अलग अलग फील्ड से होंगे, अलग अलग जगहों से होंगे, बट स्टिल दे विल वर्क टुगेदर. एंड व्हाई इट इज चैलेंजिंग? ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा होंगे तो दे कांट बी स्टे ऑन द सेम व्यू. राइट. वो सेम पॉइंट पे नहीं होंगे, तो इसलिए वो चैलेंजिंग होगा उनसे वर्क कराना. इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर इन टीम्स. Okay, so organization plus behavior becomes organization behavior. Organization behavior is the field of study. Yes, organization behavior is a field of study to investigate how people interact in a group. What is organization behavior? Organization behavior is a field of study to investigate how people interact in a group. जैसे आप यहां से देख ही रहे हैं वर्ड से, ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर. So we can say in the language, organization behavior describes how people interact with another and their behavior inside an organization and how these interactions between people will influence the working and performance of organization. Right? A simple example, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वो लोग अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं, अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं,
अलग एज के हो सकते हैं, ठीक है, ये सब लोग अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, बट दे आर वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू अचीव अ कॉमन गोल। फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग बिहेव कर रहे हैं इन अ सिंपल वे। ओके, क्लियर हो गया व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? ओके, फाइन फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मीन्स उसकी नेचर कैसी है, कैसे वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कैसा है। इट इंक्लूड 6 points. It's a separate field of study and not a discipline only. We are not saying कि it's not a discipline. We are saying not a discipline only. केवल एक discipline ही नहीं है, ये एक separate field of study है। Excuse me. By definition, a discipline is an accepted science that is based on a theoretical foundation, but OB has a multi-interdisciplinary orientation and is thus not based on specific theoretical background. What they are saying, discipline means it's based on theory. तो ये बोल रहे हैं कि ये केवल थ्योरी पर ही बेस्ड नहीं है, ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पे मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक साथ आ रही हैं। Therefore, it is better reasonable to call OB a separate field of study rather than a discipline only. Now, the second point is an interdisciplinary approach. Organization behavior is essentially an interdisciplinary approach to study human behavior at work. What they are saying, ये बोल रहे हैं इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मीन्स अगर हम किसी ह्यूमन के बिहेवियर को बताते हैं तो खाली उसका बिहेवियर एक ही चीज से नहीं बताया जाएगा। हम खाली उसकी क्रिएटिविटी देखकर नहीं बोल देंगे कि हाँ इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली हम उसका आईक्यू लेवल भी देखेंगे जो मैथ्स में इंक्लूड होगा, हम उसका क्रिएटिविटी देखेंगे जो आर्ट्स में इंक्लूड होगी, हम उसकी परसेप्शन देखेंगे, हम उसका कम्युनिकेशन देखेंगे, राइट। हम उसका साइंटिफिक चीजें देखेंगे कि वो किस तरीके से थियोरेटिकल चीजों को एनालाइज करता है, उसको अप्लाई करता है। तो मीन्स ऑल द अदर डिसिप्लिन्स, means all the other subjects include in a same person to show the human behavior. We just judge from there. It tries to integrate the relevant knowledge drawn from the relevant disciplines like psychology, sociology, and anthropology to make them applicable for studying and analyze organizational behavior. Psychology means reading human mind or human mind reaction. Sociology means the behavior of person in society. मतलब सोसाइटी में वो कैसे बिहेव कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो इट्स क्लियर। An interdisciplinary approach. It's an interdisciplinary approach. Now the third one is an applied science. The very nature of OB is applied. What OB basically does is the application of various researches to solve the organizational problems related to human behavior. ये क्या बोल रहे हैं, जो भी वहां पे रिसर्चेस हो रही हैं ये उसको अप्लाई करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्चेस हो रही हैं उसको अप्लाई करना इज नोन एज एन अप्लाइड साइंस. The basic line of difference between pure science and OB is while the former concentrate on fundamental searches, means pure science is concentrated on fundamental searches and OB is concentrated on applied searches. ये तो फंडामेंटल रिसर्चेस पर बेस्ड है और OB जो है वो अप्लाइड साइंस पर बेस्ड है. ओके, क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज अ नॉर्मेटिव साइंस. Organization behavior is a normative science also. While the positive science discuss only cause and effects relationship, OB prescribes how finding of applied research can be applied to socially accepted organizational code.
अ सिंपल एग्जाम्पल, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक लैब वर्क किया होगा या पढ़ा होगा आपने कि टर्मरिक होती है ना, टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी जो खाने में खाते हैं, जो सब्जी में डलती है, वो जो येलो येलो कलर की होती है, यस। जब हम टर्मरिक के अंदर लिक्विड सोप डालते हैं और वो कलर चेंज कर देती है, और जब हम उसको धूप में डालते हैं तो वो कलर डिसअपेयर हो जाता है। दिस इज फैक्ट। तो यही चीज जब हम अप्लाई करते हैं, कैसे, कोई एक कपड़ा लीजिए, उस पे हल्दी का दाग दाग लग जाए, ठीक है, आप उस पे लिक्विड सोप डालिए, वो कलर चेंज करेगा, वो ऑरेंज कलर टाइप का हो जाएगा, वो कलर मतलब डार्क कलर हो जाएगा उसका। अगर वो कलर चेंज कर देता है और आप उसको धूप में डालते हैं, तो आप देखिएगा कि वो कलर डिसअपेयर हो जाएगा। यानी कि जो चीज जो चीज रिसर्च हुई उसको अप्लाई किया गया, सोशली एक्सेप्टेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर बाहर की दुनिया के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया, वो एक गिविंग हो गई, राइट? सो डिड यू अंडरस्टैंड what is a normative science? Okay, now come to the fifth point, a humanistic and optimistic approach. Organization behavior applies humanistic approach towards people working in the organization. देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जब जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो कुछ ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस यूज करता है ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा फील करें। इट डील्स विद द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे विल डू, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, वो आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट को देने की कोशिश करेंगे ताकि आप वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करें। ये उनका फायदा है, ये सिर्फ आपका ही फायदा नहीं है, ये उनका भी फायदा है। अगर वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, तो फिर आप वहाँ पे हैप्पी होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे, ऑब्वियसली। तो एनवायरमेंट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस और वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली। तो जब आपको फेवरेबल थिंग्स मिलेंगे आपके, तो आप क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव थिंकर, राइट? Okay, the last point is a total system approach. The system approach is one that integrates all the variables affecting organizational functioning. जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो सब इंटीग्रेट होते हैं टोटल सिस्टम अप्रोच के अंदर। द सिस्टम अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड बाय द बिहेवियरल साइंटिस्ट। ये अप्रोच किसने डेवलप की थी, बिहेवियरल साइंटिस्ट ने, टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर इन व्यू ऑफ हिज और हर सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो टोटल सिस्टम, अ सिंपल थिंग, अगर आपका टोटल सिस्टम अप्रोच प्रॉपर वर्किंग में चल रहा है तो ऑब्वियसली आपका ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फॉलो होगा, राइट? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। इस बार हमने इस सीरीज के अंदर एक चीज और की है, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में दूंगी। मींस जैसे मैं इस क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ लेक्चर 1 में, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में आपको उसका आंसर दूंगी। एंड इफ यू लाइक द आंसर, इफ यू नो द आंसर, यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? You have to give the answer, what is organization? You have to define the organization. So please, if you like my video, so please do like, subscribe and share, and don't forget to press bell icon. You can use my YouTube channel Study Look with Surbhi at Study Look. You can see the icon, so it is easy to search. आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसमें बेल आइकन प्रेस कीजिए इफ यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू डोंट लाइक माई वीडियोज तो यू हैव ऑप्शन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो।
And if you want to give any suggestions, your comments are welcomed. And you can